A very good morning everyone. Today also we'll be looking at the same exercise 16.4 volume and surface area on cuboid and cubes. And today when we are looking at these questions, we'll be looking at some questions so that you are able to do the questions beside them, in front of them, or the questions that are after them or before them. So we'll be doing some tough questions in this video so that you are able to understand this question as well as the other questions that I am not doing. Okay, so just understand the basics also when we are doing this question for the other questions as well. So question number 10. A closed rectangular box has an inner dimension of 90 centimeter, 80 centimeter and 70 centimeter. Okay. So this is length, this is breadth and this is height given to me. Calculate its capacity. I need to find its capacity, how much it can carry inside. So उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, कितना खाना आ सकता है. So it means I have to find the capacity, means the volume. What is your capacity? How much, what is the capacity that you can eat bananas? How, what is the capacity, मतलब तुम्हारे पेट में कितना बनाना फिट आ सकता है, वॉल्यूम है ना. So and the area of the tin foil needed to line it with the inner surface. तो जो मेरा वो है टिफिन बॉक्स टाइप है जो भी है, तो मुझे उसके अंदर ना अंदर 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 टिन की फॉइलिंग करनी है. ओके, सो जब टिन फॉइलिंग करनी है मुझे मेक श्योर कि मुझे सारे दीवारों में लगाना है टिन फॉइलिंग, चाहे नीचे चाहे ऊपर हर जगह. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक व्हाट टू डू. द वेरी फर्स्ट थिंग आई नीड टू फाइंड इज वॉल्यूम. So how to find the volume? Length into breadth into height. It's a simple procedure and you can multiply 90 centimeter into 80 centimeter into 70 centimeter. Okay, 9 8 is 72 and then multiply, you'll get centimeter cube, whatever the answer you get. Okay, after this then you can find the surface area. Why? Because जो टिन होगा, जो टिन फॉइल होगा वो आप अंदर लगाओगे. यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट एंड द एरिया ऑफ द टिन फॉइल नीडेड टू लाइन अप इनर सरफेस. जो इनर सरफेस है उसमें आपको लाइन अप करना है, ये इनर सरफेस में आपको लाइन अप करना है. सो सबसे पहले आई विल बी फाइंडिंग सरफेस एरिया. Okay, surface area is 2 LB plus BH plus HL, and then I can put the values, that is 90 into 80 plus 80 into 70 plus 90 into 70. Okay, and I'll solve this, I'll get my answer, that is 2 9 8 is 72 720. Okay, plus 7 8 is 56 00 plus 9 7 is 6300. So then I can add all of them and I'll get my answer as 00 3 9 9 plus 2 11 7 8 8 8 plus 5 13 13 plus 6 19. Okay, and then I can multiply 2 9 2 are 18, that is, or you can multiply 0 0 2 18 202 3. So 38200 centimeter square. This is the tin foil or the area that I need to do the inner surface lining with a tin foil. Okay, so that's how I solve this out. Question number 10. Okay, let's start solving question number 14. This is a very interesting question. If you're able to do this question, you'll be able to do so many questions that are same like this, or maybe because this is just another level. Okay, you might have studied in physics Archimedes principle and it's something like that, but I'll explain you with the help of a diagram as well. Question says a cube of 11 centimeter edge. So there's a cube, I'm drawing a cube. Okay, this is a cube and 11 centimeter, all the edges are 11 centimeter because it's a cube. That's a basic thing that you all will know. Okay, is completely immersed in a rectangular vessel containing water. So there is a rectangular vessel is there like this. I'll try drawing a rectangular vessel. This is a rectangular vessel. Ta-da. Okay, so this is a rectangular vessel and inside this there is water. कुछ पानी है, ठीक है, कुछ पानी है इसके अंदर. So I'll just
थोड़ी कलरिंग और कर देता हूँ। इसके अंदर पानी है, ठीक है, ये पूरा पानी है। सो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और हाइट ये है, ठीक है, पूरी हाइट, पर मुझे नहीं पता हाइट क्या है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे, इफ द डायमेंशन ऑफ द बेस ऑफ द वेसल, दिस वेसल, द बेस ऑफ द वेसल्स आर 15 into 12, so this is 15 and the breadth is 12. I hope you guys are understanding this. So the length is 15 and breadth is 12 and height is not given to me. Find the rise in water level in the centimeter correct to 2 decimal places, assuming that no water overflows. तो होता क्या है यहाँ पे, अब उन्होंने ये क्यूब लिया और इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। तो मैं डालना चाह रहा हूँ, अब आप देखना। अब मैं एक ड्राइंग बना रहा हूँ ऐसे करके, सेम इसकी, इस चीज़ की, ओके ओके। अब इसमें मैंने ये क्यूब भी डाल दिया और ये क्यूब मैंने इसके अंदर डाल दिया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे, ओके। और जो पानी है ना पूरा भर गया, पानी पूरा भर गया, इसमें पानी पूरा का पूरा भर गया, पर ओवरफ्लो नहीं हुआ, पूरा भर गया। और यहाँ पे लिखा है, इफ यू गैस सी, अ क्यूब ऑफ 11 सेंटीमीटर एच इज इमर्स्ड कंप्लीटली इन अ रेक्टेंगुलर वेसल। व्हेन इट सेज कंप्लीटली इमर्स्ड मतलब पूरा का पूरा इसके ऊपर पानी आ गया, ऐसे करके कंप्लीटली इमर्स्ड, ओके। सो और इसकी डायमेंशंस दे रखी है और आपको पता है ये 11 है, ये भी 11 है। लेट्स ट्राई figuring things out, okay? We'll do it very slowly. I'll do it very slowly for you. So the very first thing that I can do is, you know, the question is on volume. तभी पानी है, पानी के अंदर एक और चीज़ डाल रहे हैं हम लोग, सो इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। सो आई विल जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग इट एंड आई विल डू एज मच एज आई कैन and I'll try finding the volume of this. So how to find the volume of the cube? Find the volume of the cube, 11 into 11 into 11. So 11 11s are 121 and 121 into 11, that is 1331. I guess so. Yes, centimeter cube. So I got the volume of this. Is that okay? जब इसके अंदर ये क्यूब डाला हमने तो इसका पानी पूरा हाइट कितनी बन गई, इसकी हाइट जो बन गई वो 11 बन गई, मतलब इसकी ये कंप्लीटली इमर्ज हो गया, कंप्लीटली इमर्ज। तो इतना तो मुझे पता है, ये 15 है और ये 12 है, तो ये कंप्लीटली इमर्ज हो गया, मतलब इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी थी 11। तो जब ये कंप्लीटली इमर्ज हो गया तो इस पानी की भी हाइट कितनी हो गई, 11 हो गई। सो आई एम गोइंग टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द वेसल when cube is inside. जब क्यूब इनसाइड है तब मैं वॉल्यूम ढूंढूंगा, दैट इज 15 इंटू 12 इंटू 11। वाई आई एम डूइंग 11? बिकॉज ये कंप्लीटली इमर्स, इसने मेरी हेल्प करी है, कंप्लीटली इमर्स्ड। तो कंप्लीटली इमर्स मतलब ये इसके बराबर का पानी हो गया, जो इसके ये क्यूब था उसके बराबर का पानी आ गया मेरे पास, ओके। सो व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस आई विल गेट 1980 सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज आई फाउंड द वॉल्यूम। तो जब इसके अंदर ये है क्यूब तो इसका मुझे वॉल्यूम मिल गया, पर मुझे वॉल्यूम ढूंढना है, वॉल्यूम ऑफ वेसल व्हेन क्यूब इज नॉट इनसाइड। तो मैंने इस वाले को मैंने वापस बाहर निकाल के यहाँ रख दिया किनारे सुखाने के लिए। अब मुझे कितना वॉल्यूम ढूंढना है, तो मैं क्या करूँगा, इसका वॉल्यूम जो है और इसका वॉल्यूम जो है मैं माइनस कर दूंगा। सो 1980 माइनस 1331. So what is the volume I got? I got the volume as 649 centimeter cube. So when I subtract this, I'll get 649 centimeter cube. किसका वॉल्यूम? ये खाली वाले का। जब मैंने इसे बाहर निकाल के रख दिया और पानी सुखाने के लिए रख दिया तो मैं देख रहा हूँ कि भाई इसका वॉल्यूम, ये पानी का जो वॉल्यूम है ये कितना है कि नहीं है, जो पानी का वॉल्यूम है कितना है। तो अब हुआ क्या, अब मैं क्या करूँगा, अब वॉल्यूम ऑफ वेसल तो आ गया जब क्यूब नहीं है इनसाइड, मतलब इसका वॉल्यूम आ गया, पानी का वॉल्यूम आ गया मेरे पास, ओके। बट इफ़ आई सी कि वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी वेसल जब इसके अंदर क्यूब नहीं है तो कैसे ढूंढते, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इजंट इट। तो क्या करूँगा, मुझे वॉल्यूम ऑफ द एम्प्टी जब क्यूब इनसाइड नहीं है तो वो तो आ गया 649 सेंटीमीटर क्यूब, एंड आई हैव लेंथ ऑल्सो, व्हाट इज लेंथ, 15 इंटू 12 इंटू हाइट,
Okay, so I can find out height of this 649 over 15 into 12. Are you guys getting it? So I'll get height out of this. Okay, so I'll divide this and I'll get height as 3.6 समथिंग, बहुत बड़ा आएगा पर मैं डिवाइड करके एक ही पॉइंट लेके आ जाऊंगा 3.6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो मतलब जो ये पानी है इसकी हाइट कितनी आई हमारी 3.6 सेंटीमीटर. इतना समझ आया आपको? पर जो हमारी पहली हाइट थी वो कितनी थी 11. जब इसमें हमने डुबाया था, ये इसमें था तब 11 थी हाइट. वो लोग पूछ क्या रहे हैं, फाइंड द राइज इन वाटर लेवल, कि पानी अगर इतना था, इतना तो कितना था, इतना तो 3.6 है, तो कितना राइज कितना हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बड़ा, पूरा तो 11 था तो राइज कितना हुआ. फिर से बता देता हूँ, पहले पानी इतना था दैट इज 3.6, पूरा पानी 11 है 11 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा. तो व्हाट यूल डू, राइज इन हाइट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3.6 एंड यूल गेट 7.4 सेंटीमीटर एज एन आंसर. मतलब पानी पहले इतना था, हमने वो क्यूब डाला और पानी और बढ़ गया और इतना तक भर गया. तो व्हाट इज द राइज इन वाटर, दैट इज 7.4. इज दैट ओके? Able to understand? So just go step wise. You guys can also pause the video if you want to, and that's going to be really helpful for you. Okay, do that. Okay, let's have a look at this. Two cubes each with 12 centimeter edge are joined end to end. So two cubes, this is one cube, okay, and this one more cube like this, and they're joined end to end. I hope you understand what is end to end joint. Okay, so ये 12 है तो ये भी 12 है. ओके, तो अब इसका मुझे क्या ढूंढना, सरफेस एरिया. पर जो नया क्यूब बना, इट्स गोइंग टू बी अ क्यूबॉइड विद लेंथ इज गोइंग टू बी 24, 12 प्लस 4, बट हाइट इज गोइंग टू बी सेम, हाइट इज गोइंग टू बी 12 एंड breadth is also going to be same, breadth is going to be 12 as well. Now I have to find the surface area. How to find the surface area? 2 LB BH and HL. Put the values, you'll get your answer. Getting it? So अभी बस कुछ नहीं चेंज हुआ, अब ये दोनों क्यूब को जुड़ा के इसकी लेंथ ही बड़ी है, बस 12 और 12 24 हो गया. बाकी दिस इज द सेम एंड हाइट इज ऑल्सो द सेम. अर्लियर ऑल्सो दिस वॉज दिस मच, दिस मच, दिस मच, ब्रेथ वॉज दिस, नाउ ऑल्सो ब्रेथ इज 12, हाइट is also same. Okay, only length is bigger now. Okay, and that's how you find the value. You just have to put in this formula, you'll get the answer. Okay, let's have a look in question number 20. Okay, I'll help you guys very slowly, and if I'm going fast you guys can pause the video. Okay, question number 20 goes something like this. A rectangular plot, एक जमीन है और वो rectangular shape में है. Rectangle, I hope everyone knows, एक rectangular shape में है. ठीक है, ज़मीन है, मैं ऊपर से देख रहा हूँ, एरोप्लेन से देख रहा हूँ, ज़मीन है, विच इज़ 24 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर वाइड. ठीक है, और मीटर में दे रखा है, पर मुझे आंसर जो ढूंढना है सेंटीमीटर में. विल कम बैक टू दैट लेटर ऑन. अ क्यूबिकल पिट 6 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप इज डक फ्रॉम द मिडल ऑफ द फील्ड. तो बीचों बीच इस जमीन के एक क्या है, खड्डा खोद रखा है. और ओके, कितना मीटर लॉन्ग है वो है 6 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप. अंदर भी है वो, सो 3 मीटर खड्डा खोदा है. ठीक है, 3 मीटर डीप इज डक फ्रॉम द मिडल ऑफ द फील्ड एंड अर्थ इज रिमूव्ड इवनली स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग एरिया ऑफ द फील्ड. तो जो इसमें से मट्टी निकल रही है वो इक्वली बिछा रहे हैं इसके ऊपर. तो जब बिछाएंगे मट्टी, आप ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हेन दे आर गोना स्प्रेड द मड और अर्थ ओवर ऑल दिस एरिया, जहाँ से मट्टी निकाल के यहाँ स्प्रेड कर रहे हैं, तो इसका जो हाइट है बढ़ जाएगी. यहाँ से जब मट्टी निकाल के यहाँ भरेंगे तो इसकी हाइट है जो बढ़ जाएगी, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर उठ जाएगी हाइट जो है. ठीक है, तो यह अभी तो लेंथ ऑफ ब्रेथ है, जैसे इसमें से मट्टी निकाल के भरेंगे इसके पास हाइट भी आ जाएगी. आई होप यू गाइस आर गेटिंग इट. सो पहले मैं इसका एरिया ढूंढूंगा, इधर जहाँ पे ये मट्टी बिछानी है इसका एरिया ढूंढूंगा. कैसे ढूंढते हैं इसका एरिया? एरिया ऑफ दिस पार्ट, कलर्ड पार्ट में बोल रहा हूँ. ठीक है, शेडेड पार्ट, मैंने खुद ही शेड किया, शेडेड पार्ट
आप सबको पता है कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ द बिगर ट्राइंगल, एरिया ऑफ द स्मॉलर rectangle and subtracted, that is 20 into 24, that's going to be 480, 480 meter square minus 24 meter, 6 4s are 24, and when I subtract this I'll get the area of this part. ठीक है, and 24 जब मैं माइनस कर दूंगा 480 में से I'll get 10 में से 4 गया 6 and 7 में से 2 गया 5, 456 मीटर स्क्वायर. ओके, ये जो 24 आया ये इसका एरिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ करा, तो मुझे कलर्ड पार्ट का एरिया मिल गया 456 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस. कितनी मट्टी निकल रही है इसमें से, कितनी मट्टी है इसमें, तो वॉल्यूम ढूंढूंगा मैं ऑफ द पिट. वॉल्यूम ऑफ पिट इज इक्वल्स टू 6 into 4 into 3, isn't it? 6 4s are 24 and 24 into 3, that's going to be 3 4s are 12, 3 6 7, 72 मीटर क्यूब. समझ आया इतना कि 72 मीटर क्यूब क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये इसका वॉल्यूम है. अब जो ये वॉल्यूम है, ध्यान से देखना आप लोग, जो ये वॉल्यूम है ये सेम वॉल्यूम इसका होगा क्योंकि मैं मट्टियाँ बिछा रहा हूँ. आपको समझ आ रहा है? तो वॉल्यूम जो इसका होगा, वॉल्यूम ऑफ द मड आउटसाइड, जो मैंने मट्टी निकाली और बिछाई यहाँ पे, चाहे मट्टी यहाँ से निकाल के मैं यहाँ रख दूँ किनारे, उस मट्टी का वॉल्यूम जो यहाँ था वो भी यहीं होगा, सेम वॉल्यूम होगा क्योंकि सेम मट्टी है. तो वो सेम मट्टी मैंने यहाँ बिछा दी, तो वो मट्टी कुछ और नहीं ऐड करी, उसी उतना ही वॉल्यूम होगा. तो जब मैंने मट्टी अंदर थी तब भी वॉल्यूम 72 मीटर क्यूब था, जब मैंने बाहर निकाली और फैला दी तब भी 72 मीटर क्यूब ही वॉल्यूम रहेगा. ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे, अब इसकी हाइट बढ़ जाएगी, जैसे मैंने मट्टी डाली इसमें इसकी हाइट बढ़ गई, थोड़ी थोड़ी हाइट बढ़ गई इसकी, क्योंकि मैंने मट्टी बिछा दी इसमें, थोड़ी थोड़ी हाइट बढ़ गई इसकी, पर मुझे नहीं पता कितनी हाइट बढ़ी. तो क्या हो जाएगा 24 के, सो आई विल मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. बट यू नो मुझे वॉल्यूम पता है मड का कितना है, जो मड आउट बिछाई है उसका है 72 मीटर क्यूब, एंड आई नो एरिया ऑल्सो मीटर क्यूब. ठीक है, आई नो एरिया ऑल्सो. व्हाट इज एरिया, इसका एरिया कितना था, लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है, इसका एरिया जो था 456 मीटर स्क्वायर इंटू एच. H I have no idea what is H. Okay, so what I'll do, I'll take this on this side 72 meter cube upon 456 meter square equals to H. Now I'll divide them. Okay, I'll divide them and I'll get my answer in points, but that's okay. So when you divide this, it's gonna, you know, meter square and meter cube कट जाएगा, 1 मीटर बचेगा, तो it's going to be 0.1396 meter. But they told me to find answer in the remaining part of the field in centimeter correct to 2 decimal places. तो अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ, I just have to multiply by 100, so it's going to be 13.96 centimeter. Okay, so that's how you get your answer. Basically when you divide this you will get your answer. Okay, let's move on. Okay, let's have a look at question number 22. Question number 22 says a cubicle, मतलब क्यूब के फॉर्म में एक बॉक्स है, wooden box of internal edge 1 meter, so 1 meter equals to 100 centimeter also, so we're going to figure out our answer in centimeter if that's okay for you. Okay, or we can also find it in meter, that's okay for us. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. A cubical wooden box of internal edge 1 meter, so I'm going to draw a box, but जो box है ना वो ऐसे करके वुडन बॉक्स से बना है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, और वो वुडन बॉक्स है. तो वुडन बॉक्स जो वुड से बनता है उसकी थिकनेस भी होती है. तो जैसे ये इंटरनल है, अभी मैं बताता हूँ आपको, मैं नीचे वुड बना देता हूँ, ऐसे करके बॉक्स है. ठीक है, ऐसे करके ऐसे और ऐसे करके. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट मेक कि जो इनर क्या है, क्यूबिकल वुडन बॉक्स ऑफ इंटरनल एज 1 मीटर, ये 1 मीटर है. ओके, एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द साइड, और ये भी 1 मीटर है, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर. सो जो मेरी एक्सटर्नल लेंथ एंड ब्रेथ होगी और जो हाइट होगी
इसके ऊपर वो नहीं है, यहाँ लिखो, देखो क्या, अ क्यूबिकल वुडन बॉक्स इज इंटरनल एज 1 मीटर इज मेड ऑफ 5 सेंटीमीटर थिक वुड, द बॉक्स इज ओपन एट द टॉप। तो उसके ऊपर ढक्कन नहीं है, नीचे है, वो नीचे भी वुड है थोड़ा सा, ठीक है, पर वो 5 सेंटीमीटर का है। सो इफ द वुड कॉस्ट ₹9600 पर मीटर क्यूब, find the cost of the wood required. So first what I am going to do, I am going to find internal length, breadth and height, ठीक है। So internal length is equals to 1 meter, internal breadth is equals to 1 meter and internal height is equals to 1 meter. No deal in that. External, now let's talk about external length, breadth and height, ठीक है। अब इधर से 5 बढ़ रहा है, उधर से 5 बढ़ रहा है, तो लेंथ में कितना हो गया, लेंथ इज इक्वल्स टू 1 मीटर प्लस 0.05 मीटर प्लस 0.05 मीटर, एंड सेम फॉर ब्रेथ, 1 मीटर प्लस 0.05 मीटर प्लस 0.05 मीटर, ओके। बट हाइट में 1 मीटर है, तो ऊपर कुछ नहीं है, नीचे नीचे ही वुड है, तो प्लस 0.05 मीटर। तो मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तभी मैंने 0.05 लिखा है मीटर, इफ दैट्स ओके फॉर ऑल ऑफ यू। सो जो मेरी इंटरनल लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगी, सो इफ़ यू गाइस हैव अ लुक ओवर हियर, इट्स गोइंग टू बी 5 और 5 1 10 हो जाएगा, सो इट्स गोइंग टू बी 1.1 मीटर, ओके। इसमें भी ब्रेथ भी 1.1 मीटर एंड दिस इज गोइंग टू बी 1.05 मीटर. Is that okay? So what I'm going to do, I'm going to find the internal volume and I'm going to find the external volume. Okay, so internal volume is equals to length into breadth into height. That's going to be 1 into 1 into 1, that's going to be 1 meter cube. And external volume is going to be 1.1 into 1.1 into 1.05. Okay, so when I multiply this, I'll be getting, so what I'll be getting is, I'm sorry for this, so my answer is going to be, the volume for the external one is going to be 1.2705 meter cube. Okay, and this is going to be 1 meter cube, but I just need to find the this volume, iska volume, wood ka volume. So what to do, internal volume minus external volume. So volume of wood equals to external minus internal volume. So external is 1.2705 minus 1 meter cube. So when I subtract 1 meter cube from this, I'll be getting 0.2705 meter cube, isn't it? So this is the volume I have for the wood. Okay, और cost इतना है. So what is the total cost? Total cost is going to be 0.2705 meter cube into 9600, and when I multiply them, I'll be getting my answer. Okay, so that's going to be the total cost, and whenever you get the total cost, you'll write rupees. तो पूरा wood बनाने का total cost कितना होगा, आप ऐसे ना हो. Is that okay? Okay, let's have a look. 3 cubes whose edges are x centimeter, this is x, this is question number 24, x centimeter, 8 meter and 8 centimeter and 10 centimeter respectively are melted and recasted into a single cube of edge 12 centimeter. Find x. So आपको जब ये देख रहा है कि वो मेल्ट कर रहे हैं और फिर दूसरा बना रहे हैं, तो आपने देखा होगा जब आप आटा गूंथते हैं और आप छोटे छोटे वो बनाते हैं, तो जो पूरे आटे का वॉल्यूम होता है और छोटे छोटे गोलों का वॉल्यूम होता है वो सेम होता है, अगर छोटे छोटे गोलों को ऐड करें हम लोग जब आप रोटी बनाते हैं, तो वैसे ही उन्होंने सबको लिया, सबका वॉल्यूम लिया. सो आई एम गोइंग टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट वन, दैट्स गोइंग टू बी गिविंग मी एक्स क्यूब. वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड वन, that's going to give me 8 into 8 into 8, 8 8 is 64 and 64 into, so 8 into 8 into 8. Okay, so this is going to be 8 into 8 64, 64 into 8, that's going to be 512 centimeter cube, and the volume of the third one is going to be 10 into 10 into 10
that's going to be 1000 centimeter cube. Now when I have all three volume, I'm going to put them in the fire so that they can be melted down. So I'm going to melt both of them. But when I melt all of them and I just make one big good one, so it's going to be in सबका volume जो add होगा, that's going to be x plus 512 plus 1000. So it's going to be total volume of 3 cubes is x plus 1512 centimeter cube. Now the good question about this is इसको मिला के उन्होंने एक बॉक्स बनाया, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एक और बनाया, और जो है 12 into 12 into 12, all sides are 12. Okay, so I'm going to find, I'm sorry if you're not able to see, so what I'll be getting 2728 centimeter cubed. बट आई ऑलरेडी हैव द उसका वॉल्यूम, क्योंकि ये भी उसी का वॉल्यूम है, क्योंकि इसी को आग में डाला उन्होंने, उसमें फायर में डाला, उसी को ऐसे जो जल रही थी आग उसमें डाला और तीनों को डाल दिया और एक बड़ा सा वो गोला बन गया और उससे क्यूब बना दिया उन्होंने. तो जो तीनों का वॉल्यूम है दैट इज इक्वल्स टू x प्लस 1512 सेंटीमीटर. And then I'll be taking this on that side and subtracting this. So x is equals to 2728 minus 1512 centimeter cube, and then I can subtract and I'll get the value of x, the very first cube. Okay, this was cube. Okay, so it's going to be, what is it going to be, 2728 minus, so if I subtract 2728 minus 1512, 6121 12616, and then I have to find the cube of this, and whenever I have to find the cube of something I have to shift this over here, cube root 1216, and then I can factorize this 1216 and I'll get ये किसका cube है. Okay, you guys can factorize and just bring, क्योंकि हमें x की वैल्यू ढूंढनी है. यहाँ पे लिखा है find the value of x, not x cube. मुझे x cube की वैल्यू आई है, I didn't got the value of x. So इसका जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे you'll get the answer. Okay, you can do by 2 and 2 and onwards, you'll get the answer. Yeah, thanks so much for watching this video. I hope you guys got something out of it. I did leave some of the basic points that you need to do at the end so that you guys are able to do some questions, and also these questions can be a help for the other questions as well. Thank you so much for watching this video. Have a great day everyone.